Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we are going to discuss Godrej Meridian and Shobha City. As you guys know, these two are very premium projects on Dwarka Expressway, and this is something uh, a lot of buyers are looking at, a lot of investors are looking at, and some people who are kind of trying to exit the societies. Actually, most of the buyers and investors are looking at this. So if you are a first time buyer or a first time viewer, you can see this is our channel Gurugram Real Estate, and we do weekly polls, and on basis of those weekly polls we provide you comparison analysis. So we did our sixth poll, and in that sixth poll we got the clear winner, Godrej 106 versus Shobha 108. The votes you can see, we had got 29 votes and 62% has been gone to that. इससे मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, दिस प्रूव्स अ लॉट ऑफ बायर्स आर लुकिंग in a range of 3 to 3.5 CR as well. So higher middle class is probably looking at this, and these two are very good products. And जैसे आपको पता होगा, हमने the last video that we uploaded with the comparison Ashiana versus MR Serenity Hills, you can also go and check out this video. बट आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आज का वीडियो देखने के बाद, इन दोनों का कंपैरिजन के बाद. एज यूजुअल, वी गाइज have prepared this technical analysis to provide you all the information in the correct and precise way. काफ़ी बड़ा है ये. हाई वैसे ही वीडियोस 45 मिनट्स के ऑलरेडी हो जाते हैं. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू गो अराउंड 50 मिनट्स. So we have a lot to share, and a lot of information. We will discuss the brochure, we will discuss a lot of things that are in there, including the concept brochure, carpet area, the open space per capita, each and everything we are going to discuss. And as you guys know, मेरे को थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया in this. If you guys can see, this is not visible. This is Godrej demarcation plan, but you can see in while I zoom in, it's not properly visible. ये थोड़ी स्कैनिंग की दिक्कत है, जिसने भी स्कैन करके डाला है शरा पे, but then the figures were not visible, so we have to check it out on ground as well. So you can see scanned by cam scanner. I don't know why they will use the cam scanner, but it was not visible. तो आप लोगों के लिए again proper information है, correct information. Okay, so this is Shobha's demarcation. As you guys know, 20 towers हैं. So demarcation plan, we have provided this report that you can see here. So आपको पता चलेगा. Also, I would like to clearly say that thank you for the 500 subscribers. To be frank, मैंने ये चैनल चालू किया था to help out real people, close friends, my inner circle in a way. And now we have got to a comparison analysis for this. It's only been 6 months, and I'm really grateful कि आप लोगों ने इतना support किया. 6 months में we have got 500 plus subscribers, and आप लोगों के support के कारण ही I am fully into it now. Also, there is an announcement. This is going to be our last video for this year, for this Western New Year. आपको जो next comparison मिलेगा in the next poll, that will be on first week of January. We are going for a break, so we will see you in the first week of January. So happy New Year in advance. Happy Western New Year. Let's start the analysis. Thank you. Okay, so let's start with the brochure first. As you guys know, this is Chintel's land. There was a partnership here. You can see this Chintel's Metropolis, Sector 108 and all that. But मैं आपको clearly वीडियो में first बता दूंगा. For me, शोभा सिटी 108, अगर आप NRI हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप एंड यूज़र हो, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़ टू बाय इन गुड़गांव. मैं पहले भी इसका एक वीडियो बना चुका हूँ. आई कंपेयर्ड इट विद कॉन्शियंट एलिवेट, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल. सो आज ये दोनों कम्युनिटीज़ पहली बार कम्युनिटी में अभी शोभा को तो बोल सकता हूँ, देर इज़ वेरी गुड जेंट्री एंड काफ़ी अच्छी जेंट्री है. और गोदरेज इज़ समथिंग जो अभी पोजेशन आया है इस ईयर 2 टावर्स का. एज यू गाइज नो, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिले जो गोदरेज का हुआ था. आई हैव क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि डेवलपर्स, आपको डिले जब होता है 1.5-2 साल का, तो डेवलपर्स को क्या गेन होता है. ये इन्फॉर्मेशन अगेन मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ, पहले जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए अबाउट द क्रेडिट साइकिल एंड ऑल दैट, डेवलपर्स के बारे में भी, प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस,
ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अगेन मैं आपको आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस इन अ इन्फॉर्मेटिव में कि आप लोगों को आइडिया लग जाए, बट आप लोगों को एक्चुअल में ये पता लगेगा कि डेवलपर्स कितना कमाते हैं। जहाँ एक आम इंसान को 1-2 महीने के डिले के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वहाँ डेवलपर 2-2 साल के डिले में कितना कमाते हैं। यू गाइज वुड सी द एक्चुअल ट्रुथ और द वे दिस सिस्टम इज़ बिल्ड टू हेल्प आउट दिस काइंड ऑफ पीपल। सो अगेन मैं अपने वीडियो पे कभी भी, एज यू गैस नो, आई डोंट शेयर द वर्ड फ्रॉड, स्कैम, ट्रैप एंड ऑल दोज थिंग्स। आई एम जस्ट शेयर टू प्रोवाइड यू कंसल्टेंसी, प्रोवाइड यू फुल एनालिसिस, टीच यू अबाउट दीज थिंग्स इन अ वे। एंड हमने आज ROI भी निकाला है गोदरेज मेरिडियन का। शोभा का मैं पहले निकाल चुका हूँ, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहले गोदरेज पे आ जाते हैं। 106 दिस इज़ अ प्रोडक्ट मेरे हिसाब से गोदरेज का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट है। आई नो बहुत सारा डिले हुआ है इसमें, आई नो बहुत सारे बायर्स के साथ गलत किया गया है, मैं उसके बारे में बोलूँगा, बट दिस फॉर मी इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट इन द होल ऑफ गुड़गांव, ठीक है। इसका नाम में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, आई डोंट नो, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी अंडररेटेड, ठीक है। इसका जो प्राइस चल रहा है अभी, इसके जिस वे में क्लब हाउस है, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लब हाउस का। देर इज़ अ बिग ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल एंड देन देर इज़ दिस बिग एरिया, दिस इज़ ग्रीनरी अभी आ जाएगी सोसाइटी इस साल, मतलब 26 में आई वुड से कि आपका मार्च तक, आई फील सो 26 जून तक बाकी टावर्स के साथ साथ काफ़ी बेटर हो जाएगी ये सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं इसको भी डिज़ाइन वाइज, फसाड जैसा पेपर पे दिखाया है एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, बट स्टिल अच्छा दिखता है। सो फसाड इज़ ऑल्सो गुड, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो गुड क्लब हाउस का। ये जो सारी चीज़ें मेंशन करी है, ऑफ कोर्स अभी मेरे को बहुत लोगों ने, जो मैंने कंसल्टेंसी भी दी है, पीपल आर लाइक यार हमें थोड़ा सा रिजर्व्ड है व्हेन इट कम्स टू, दे डोंट वांट टू गो टू द्वारका एक्सप्रेस वे। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप लोग अभी 1-2 साल की पिक्चर देख रहे हैं, 2-3 साल बाद यही सोसाइटीज़ आपको और ज़्यादा वैल्यू पे मिलेंगी अगर रियल एस्टेट बढ़ना ही है तो, इन दैट वे। सो जस्ट टू क्लियर इट आउट, आप अगर एक्सटेंशन पे देख रहे हैं, SPR पे देख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो नॉट बैड ऑप्शंस इफ़ यू कैन जस्ट ओपन योर माइंड एंड यू कैन कनेक्ट विद अस, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट विद दीज, एंड दीज सोसाइटीज़ आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं मास्टर प्लान है, देर आर 7 टावर्स, 1 2 3, दिस इज़ आइकॉनिक 4, ठीक है, 5 6 7, ये आपके जो टावर्स हैं यू कैन क्लियरली सी देयर। इसमें जो 2 टावर हैं दीज आर आइकॉनिक, एंड मैं आज आइकॉनिक के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि आपको ये जो चीज़ें इतनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ, आपको कोई शायद पेड कंसल्टेशन में भी नहीं बताएगा। सो प्लीज़ दिस आइकॉनिक टावर्स 3 and 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस थॉरली अबाउट दैम। टावर 1 2 4 5 6 7 दीज, ये आपका क्लब हाउस है। एंड एज़ यूजुअल मैं आपको मास्टर प्लान में इन्होंने दिखा नहीं रखा, बट यहाँ पे रेवेन्यू रास्ता भी जा रहा है। तो इवन दो दीज आर वेरी गुड सोसाइटीज़, मैंने आपको दिखा रखा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की सबसे फेमस 3-4 सोसाइटीज़ जो अभी पोजेशन पे आएंगी, उनमें भी रेवेन्यू रास्ता है, गोदरेज में भी है, शोभा में भी है। शोभा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रेवेन्यू रास्ता का, ठीक है, डॉक्यूमेंट में मैंने बता रखा है, बट रेवेन्यू रास्ता डजेंट डू एनीथिंग, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सो रेवेन्यू रास्ता बोल के आपको कोई भी चीज़ लेने से रोक रहा है, वो कोई सा भी प्रोडक्ट, वो ब्रोकर आपके लिए हेल्प नहीं कर रहा, अपनी हेल्प कर रहा है। सो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। ये आपका फ्लो प्लान पे हम आएंगे। इसका मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, दिस फ्लो प्लान वेयर इज दिस 3 BHK, दिस 1025 कारपेट एरिया, लिसन टू दिस केयरफुली। पूरे गुड़गांव में अगर कोई हाई राइज है जो माइवन कंस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे छोटे साइज़ का 3 BHK का प्लान इससे बेटर नहीं हो सकता। इसका कारपेट एरिया 1025 है, 1625 इसका बिल्टअप एरिया है, सॉरी सुपर बिल्टअप एरिया है। इससे बेटर प्लान आपको 1625 में और हाई राइज में, माइवन में, न्यू सोसाइटी में विद अ गुड क्लब हाउस नहीं मिल सकता इन 1600। ये आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लेना, 2 न्यू लॉन्चेस की मैंने बात करी है, उनका फ्लो प्लान देख लेना, ये देख लेना, ठीक है। आज हम ये नहीं डिस्कस करेंगे दिस इज 1625 1025 कारपेट एरिया, हम डिस्कस करेंगे 1825 1108। इसमें 3 रूम्स टुगेदर हैं, इसमें आपके 2 रूम्स टुगेदर हैं। जैसा मैं बोलता हूँ, अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए एंड यूज़ के लिए अपार्टमेंट लेना है एक हाई राइज में, तो तीसरा रूम हमेशा साइड में होना चाहिए, दैट इज़ योर गेस्ट रूम, और इसमें वो चीज़ है, सो दैट मैटर्स अ लॉट। ये जो प्लान है दिस इज़ वेरी अंडररेटेड, एंड मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे, बट इसकी प्राइस इज़ अराउंड 2.5 से 2.6 ईयर। अगर आपको ये 2.5 से 2.6 की डील मिलती है, हाँ, यू हर्ड इट राइट, गुड़गांव में एक न्यू हाई राइज में विद अ ब्रांड लाइक गोदरेज आपको 3 BHK 2.5 CR में मिल जाएगा इन अ माइवन कंस्ट्रक्शन पे अभी हम बात करेंगे इसके टावर की एंड ऑल दैट, बट आपको ये काफ़ी अच्छा
बहुत ही अच्छा फ्लो प्लान मिल रहा है इन अ 2.5 2.6 बजट, सो प्लीज़ लुक आउट फॉर दैट। आज जो हम इसकी बात करेंगे, इसका प्राइस इज़ 2.9 CR आपका, 2.85 से 2.9 CR, ठीक है। एंड शोभा का इज़ 3.4 CR आपका। तो वी विल हैव द फुल कंपैरिजन, ठीक है। ब्रोशर पे वापस आ जाते हैं। आपका ये सारी चीज़ें लिविंग रूम में जो दिखा रखी हैं, ऑल दिस इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। एंड हाँ, आपको जो ग्रीन्स हैं यहाँ पे दीज ग्रीन्स विल बी देयर। अभी आप जाके प्रोडक्ट देखेंगे तो ठीक लगेगा, आई वुड नॉट से इट्स वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल दैट। जैसी और ज़्यादा फैमिलीज शिफ्ट होंगी, एंड आई नो अगर आप एंड यूज़र हैं जिसने 2018-19 में बाई किया था, आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट हैपेंड विथ यू, दैट्स द वे इट इज़। बट मैं आज थोड़ा सा और लोगों को भी बताऊंगा कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंस, आप लोगों की मनी के साथ क्या किया गया था, ठीक है। सो yes, this is the brochure। सारी amenities हैं, amenities wise, club house wise, these are very good। आपके इसमें 48 सीट थिएटर है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइज थिएटर। एंड यू कैन आपका कन्वीनियंट शॉपिंग भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका ये जो ब्रोशर है, आई ऑल्सो हैव द ओरिजिनल ब्रोशर जो आपका 19 में था, यू कैन चेक आउट दिस। ये आपका दिस इज़ द ब्रोशर दैट वाज गिवन टू फेस 2 पीपल जो या 51 यूनिट्स पर एकर है, ठीक है। आपका ओपन ग्रीन स्पेसेस अच्छे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सेंट्रल कार फ्री जोन है, ट्री कम्युनिटी है, फॉरेस्ट जोन है। तो काफ़ी अंडररेटेड है, आई बिलीव सो। 3 साइड ओपन कॉर्नर यूनिट्स, आई वुड नॉट से 3 साइड, 2 साइड तो हैं। 3 साइड अब वो बड़े वाले 3 BHK एंड 4 BHK आ जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट या आपका अनहिंडर्ड व्यू, ये कुछ टावर से, अगेन सी दिस मार्केटिंग अनहिंडर्ड व्यू, ये कुछ टावर से ऐसा दिखता है, बाकी टावर्स की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सैनिटरी वेयर सारी चीज़ें आपको लगा के मिल रही हैं, एमिनिटीज़ आर गुड, सारी चीज़ें हैं। दिस क्लब हाउस दैट हैज़ बिन मेंशन 66,000 स्क्वायर फीट, इट्स एक्चुअली 55,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। आज क्लब हाउस की भी बात करेंगे एंड वॉट एग्जैक्टली आपको ब्रोकर्स बताएंगे, इन सारी चीज़ें करेंगे। बट या दिस इज़, यू कैन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पी कास्ट फॉर प्रीमियम टावर्स, एल्यूमिनियम फॉर आइकॉनिक। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जिन्होंने 18-19 में लिया है वही बता सकते हैं। एंड यूज़र्स, और एंड यूज़र्स भी छुपाएंगे, क्योंकि बोला जाता है दिस इज़ फुल माई वन, दिस इज़ नॉट फुल माई वन। हम बात करेंगे, जैसे आपने देख ही लिया है, ये ब्रोशर पे 2019 का है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। मैं आपको एज अ कंसल्टेंट एडवाइस भी दूंगा कि वॉट यू कैन लुक आउट फॉर दिस, ठीक है। चलिए, ब्रोशर डिस्कस हो गया, शोभा पे हम आ जाते हैं। आई नो शोभा इज़ प्रोनाउंस्ड एज शोभा, बट आई डोंट लाइक टू से शोभा। इट्स समथिंग मेरे को नहीं समझ आता। आई लाइक सिंग शोभा, सो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यू विथ शोभा, ओके। शोभा सिटी इज़ समथिंग दैट इज़, आई वुड से, आप अगर आपके बजट में आता है इसका 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK, तो आई वुड जस्ट से टू यू कि आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो एंड बाय एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ इस पे कि इस पे आप जो भी मनी लगाएंगे एट वॉट एवर टाइम, इट विल नॉट गो रॉन्ग। सो दिस अर्बन पार्क रेजिडेंसेस, आपको पता है दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स के पास है, बहुत सारे टावर से बहुत अच्छा व्यू है, यू कैन सी दिस। ये आपका Z1 Z2 है, Z1 Z2, दिस इज़ योर D1 D2। ये आपके पुराने हैं फेज़ 1 फेज़ 2 के। दिस इज़ योर क्रिकेट ग्राउंड, इट्स अ वेरी गुड। दिस इज़ योर फर्स्ट क्लब हाउस, दिस इज़ योर सेकेंड क्लब हाउस। ये आपका स्विमिंग पूल और लेकलेट है। तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट यार। और जिस बायर ने भी लिया एट दैट टाइम, हाँ उस टाइम पे महंगा था, मैंने इसका रिटर्न्स ऑलरेडी निकाल रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल ऑन माई चैनल की रिटर्न्स लोगों को, इन्वेस्टर्स को कितना मिला है एंड वॉट एग्जैक्टली इसको कॉन्स्टेंट के साथ भी कंपेयर किया था मैंने। जब देर आर मैनी पीपल हु आर ओके टू गो ऑन एक्सप्रेस वे एज वेल इंस्टेड ऑफ एक्सटेंशन, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। आप ये देख सकते हैं, इसमें जो चीज़ें बोली गई हैं ना, दे हैव प्रोवाइडेड दैट। एंड आई वुड से, जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, दिस हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन ओवर इन होल ऑफ गुरुग्राम इन अ हाई राइज लग्जरी सोसाइटी। आई वुड से इससे बेटर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। A+ ग्रेड है इसका कंस्ट्रक्शन का। 8.5 एकर्स ऑफ प्लान अर्बन पार्क है, 2 क्लब हाउसेज हैं, ½ एन एकर ऑफ रिसॉर्ट स्टाइल लेकलेट है। ये यू कैन से इट्स लेकलेट थोड़ी सी है, बट ठीक है, ओलंपिक साइज पूल है, तो आप देख सकते हैं। ये सारी अमेनिटीज़ दे रखी हैं एंड इट्स अ 39 एकर्स टाउनशिप, जिसमें आपका बहुत लो डेंसिटी है। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। आई एम नॉट सेइंग आई एम कि मेरे को यही अच्छी लगती है, बट इट्स दैट सिंपल, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस, ठीक है। ये आपके सारे स्पोर्ट्स सेक्शन, सारी चीज़ें हैं। मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक ऑफ अ मास्टर प्लान,
ओके, आई वुड से मास्टर प्लान बेटर हो सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड सोसाइटी. इन्होंने, आप अगर किसी से पूछेंगे शोभा में कितने टावर्स हैं, लीगली टेक्निकली दे वुड से 17, बट देर आर 20 टावर्स. सो ये 20 टावर्स की जगह काफ़ी बेटर हो सकती थी चीज़ें, एंड जिस वे में मास्टर प्लान है और बेटर हो सकता था, बट ठीक है यार, इट्स स्टिल अ वेरी गुड मास्टर प्लान. आपका पेमेंट प्लान, सारी चीज़ें, दिस इज़ द प्लान वी आर गोइंग टू डिस्कस. 1711, यू नो, दिस इज़ 3 रूम साथ में है, बट एज़ यू नो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ जो आजकल न्यू लॉन्चेस है 3 रूम साथ में ही है. गोदरेज का भी जो हम फ्लोर प्लान डिस्कस करेंगे 3 रूम साथ में है. सो यू नो दिस इज़ समथिंग, 3 रूम साथ में पीपल आर एक्सेप्टिंग. आई वुड से फॉर अ लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ गुड बैट, बट ठीक है. 3 रूम्स टुगेदर वाला फ्लोर प्लान है 1711, ठीक है. आई थिंक दिस इज़ अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, एवरी वन हैव सीन दैट आई बिलीव सो. आपको पता है डिप्लोमेटिक इनक्लेव, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एरो सिटी, आपका जॉब भी एरो सिटी पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर. आपका बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, यू नो, लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हब, मेट्रो रेल, आपका टनल है वो अब चालू हो चुकी है. सो यू कैज कैन गो एंड चेक आउट द कनेक्टिविटी एज वेल, यू नो. सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एंड इसका आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द Z1 एंड Z2, जो आपका Z1 Z2 टावर है. दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फ्लो प्लान्स एवर दैट यू कैन फाइंड इन अ बिगर 3 BHK. बट या शोभा इटसेल्फ इज़, यू नो, वेरी गुड. सो या आई थिंक लेट्स स्टार्ट. वी हैव डिस्कस दिस फ्लो प्लान, हम खोल के रख देते हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी 1711 वर्सेस दिस 1825, ठीक है. ये दोनों फ्लो प्लान्स है. लेट्स कम टू द टेक्निकल एनालिसिस नाउ. सो आप लोगों को पता होगा व्हेन इट कम्स टू द्वारका एक्सप्रेस वे, लैंड, यू नो, 14, 15, 16 एकर्स का होता है, या आपका नॉर्मली 10 एकर्स का होता है. तो शोभा में यू आर गेटिंग 39 एकर्स. दिस इज़ समथिंग जो मैं किसी को भी बोलता हूँ, अगर आपको एक फ्यूचर देख के 20, 30, 40, 50 ईयर्स के लिए लेनी है सोसाइटी या कम्युनिटी, अब ये मैं बोल सकता हूँ शोभा कम्युनिटी बन चुकी है. गोदरेज में अभी टाइम लगेगा, बट आप 25 एकड़ से बड़ा साइज़ देखिए, यू नो, दैट विल ऑलवेज बी मच मच बेटर फॉर यू इन लॉन्ग टर्म. आप 1-2 साल का, 10 साल का देख के लेंगे, आई एम सेइंग यू 50 ईयर्स का विजन देख के लेंगे, तो 25-30 एकर्स इज अमेजिंग, एंड शोभा इज़ 40 एकर्स, 39.3 एकर्स. इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है. आपके टोटल यूनिट्स हैं, गोदरेज इज 14.8, टोटल यूनिट्स है 754. यहाँ पे हैं आपके 1548 यूनिट्स पर एकड़. कितना निकल गया है? 51 एंड 40. आप खुद देख सकते हैं कितनी लो डेंसिटी हैं दोनों. 40 यूनिट्स पर एकड़ होना इज़, यू नो, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, एंड दिस 51 इज़ ऑल्सो लो डेंसिटी. सो दोनों में अमेजिंग लो डेंसिटी है. ये हाई राइज गेटेड कम्युनिटी बन सकती है. लार्ज टाउनशिप है आपका, ठीक है. रोड एक्सेस 84 मीटर रोड से 60 मीटर एंड 12 मीटर का आपका सर्विस. ये आपका 75 + 12, ठीक है, 100 मीटर वाइड रोड. टावर्स एंड हाइट की बात कर लेते हैं. यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 टावर्स हैं, ठीक है. G+34 है. आइकॉनिक टावर्स हैं 2 आपके, 2 आइकॉनिक टावर्स जिनकी हाइट G+34 है. अदर हाइट्स हैं G+19, G+23, G+25. यूनिट्स पर कोर है आपके आइकॉनिक में 4. आपके 2 टावर हैं, टावर 2 एंड टावर 7 आपका, जिसमें 5 यूनिट्स टू अ कोर है, ठीक है. टावर 2 एंड 7. और आपका शोभा में यू गैस नो 17 टावर्स बोले जाते हैं, बट देर आर एक्चुअली 20, क्योंकि D1 D2 को एक टावर बना रखा है, Z1 Z2 को भी एक टावर बना रखा है. सो इन दैट वे, यू नो, इट्स लाइक दैट. मैक्सिमम हाइट इज़ G+24, अदर हाइट्स G+17, G+18. तो आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा, यू नो, हाइट पे रहना चाहते हैं 30th फ्लोर पे, तो ऑफकोर्स गोदरेज का ही ऑप्शन है आइकॉनिक टावर में, ठीक है. बट आई थिंक सो 17, 20th फ्लोर इज़ ऑल्सो गुड इनफ. यूनिट्स आपके Z1 और Z2 में 3 हैं, यहाँ पे आपके 4 हैं. यहाँ पे आपके आइकॉनिक में 4 है, गोदरेज में यहाँ पे 5 हैं, 2 इन टावर 2 एंड 7, ठीक है. लिफ्ट्स 2+1 है, 2+1 है. यहाँ पे भी 3+1 भी है. टावर डिपेंडेंट है. बेसमेंट पार्किंग दोनों में 2 लेवल्स हैं. शोभा में कुछ टावर में ग्राउंड स्टिल पे भी है एंड बेसमेंट 1 लेवल ऑनली है. तो वो टावर टू टावर डिपेंड करेगा, ठीक है. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे आ जाते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, आपने पुराने ब्रोशर में भी देख लिया, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा. गोदरेज को बहुत सारे लोग बोलेंगे इट्स फुल माइवन कंस्ट्रक्शन. इट्स नॉट फुल माइवन कंस्ट्रक्शन. सो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट इन द प्रिसाइज वे. आप इस पे याद रखिएगा. आपको कोई भी ब्रोकर ये चीज़ बोलेगा कि ये हाइब्रिड नहीं है, ये आपका फुल माइवन है. हाँ सर, माइवन कंस्ट्रक्शन है, आप माइवन कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, बढ़िया है.
अगेन बता रहा हूँ, आइकॉनिक जो टावर है उसमें फुल माइवन कंस्ट्रक्शन है। फुल माइवन का क्या होता है, मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक्स जो इस वीडियो के नीचे मैंने दे रखी है। आप हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन, माइवन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशनल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका फुल माइवन है आइकॉनिक में, मतलब आपके जो इनर वॉल्स हैं वो भी माइवन है। आपकी जो बाकी के टावर्स हैं, यू नो दोज प्रीमियम टावर्स जो मैंने आपको पुराने ब्रोशर पे दिखाया, उनमें हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है। व्हाट आई मीन बाय हाइब्रिड इज, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आरसीसी प्लस प्रीकास्ट प्लस कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब आपका ब्रिक लगी हुई है उसमें, आपके इनर वॉल्स में। तो जब हम ये फ्लो प्लान डिस्कस करेंगे, दिस 1855, ये आपका प्रीमियम टावर्स में है, ठीक है। आपको ये, जैसे मैंने पहले भी अपनी, अगर आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, यू वुड हैव सीन कि मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये रूम है आपका 11/12 का। आपका माइवन में, अगर फुल माइवन में जो आपका शोभा में है या और बहुत सारी सोसाइटीज़ में फुल माइवन है, वो आपको 12/10 का रूम भी इससे बड़ा लगेगा एज़ कम्पेयर टू 12/11, बिकॉज इसमें आपके रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन है। रेड ब्रिक्स में आपकी बीम्स और पिलर्स और सारी चीज़ें जब आती हैं तो वो इतनी बड़ी फील नहीं देता परसेप्शन वाइज। डू यू गेट दैट पॉइंट? तो ये आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़। आपका जो हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है, अंदर रेड ब्रिक है या आपकी ऐश ब्रिक है किसी किसी टावर में, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू, आपको चेक करवाना पड़ेगा जब आप बाय कर रहे हैं, बट दैट इज़ द केस। सो इंटरनल वॉल्स आपके नॉन माइवंस हैं नॉर्मल टावर में। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मीडियम है। हाई मैं आपको बोलूँगा आइकॉनिक टावर्स में है, क्योंकि फुल माइवन और उसका ब्लॉग अगेन दे रखा है, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फुल माइवन और हाइब्रिड में फ़र्क है। आजकल क्या हो रहा है, कोई भी न्यू सोसाइटी, कोई भी न्यू लॉन्च आ रहा है, सर माइवन है। माइवन क्या है, किस चीज़ का है, बाहर का है, अंदर का है, क्या चीज़ है, प्लीज़ बताओ। तो आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, और मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वे में जो ब्लॉग दिया है, प्लीज़ वो पढ़िए जाके, ठीक है। शोभा में फुल माइवन है, मोनोलिथिक आरसीसी है, माइवन इंटरनल वॉल्स, हाई लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी अक्रॉस प्रोजेक्ट। Z1 Z2 आई बिलीव मच बेटर होगा मैन इट इवन कम्स टू फुल माइवन। बट यार मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर गोदरेज में देख रहे हैं, अगर आप बड़ा वाला 3 BHK ले रहे हैं, तो प्लीज़ आइकॉनिक टावर्स में देखिए। इवन दो थोड़ा सा रेट का फ़र्क होगा डेफिनेटली, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुल माइवन हैज़ फ्यूअर जॉइंट्स एंड लेस वर्कमैनशिप डिपेंडेंसी एट सिमिलर प्राइसिंग गैप्स। फुल माइवन इज इक्वल टू बेटर लॉन्ग टर्म वैल्यू। सो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली, कि आप अभी ना मार्केट में बहुत लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं, ना ब्रोकर्स ढंग से बताएंगे, ना आपको डेवलपर्स ये चीज़ ढंग से बताएंगे। फुल माइवन कंस्ट्रक्शन और जो नॉर्मल माइवन हाइब्रिड है, बहुत लोग उसको माइवन बोल देते हैं। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना दे रीच आउट टू एनी कंसल्टेंट और समवन हु कैन प्रोवाइड अ जेन्युइन एडवाइस। तो वो हाइब्रिड को माइवन समझ के खरीद लेते हैं, बट फुल माइवन हमेशा बेटर लॉन्ग टर्म वैल्यू देगा एज़ कम्पेयर टू अ हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। और हाइब्रिड को माइवन बता के बहुत लोग अपने प्राइसेस बढ़ा के बेच रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। आपका ओपन स्पेस, ग्रीन्स एंड लिवेबिलिटी हम देख लेते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा या गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स, मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट। ओपन स्पेस पर कैपिटा, एमिनिटी स्पेस पर कैपिटा एंड ग्रीन स्पेस पर कैपिटा बता रखा है मैंने उसमें। यू कैन कैलकुलेट इट फॉर योर सेल्फ, मैंने इसमें निकाल के दिखा दिया है आपको ओपन स्पेस तो, ठीक है। गोदरेज में आपका 85% ओपन स्पेस है, शोभा में आपका 70 to 71% है। डेडिकेटेड ग्रीन एरिया इज़ 2.2 एकर्स, यहाँ पे आपका 5.7 एकर्स है, ठीक है। ऑफकोर्स टाउनशिप का इट्स 39 एकर्स है, यहाँ पे 15 एकर्स है। अर्बन पार्क ठीक ग्रीनरी है, बट यहाँ पे आपको 8.5 एकर्स का लेक और क्रिकेट ग्राउंड है, जो एक अर्बन पार्क की तरह काम करता है। एंड इट्स अ वेरी गुड एरिया, आप जाके देखेंगे पर्सनली तो यू वुड फाइंड इट वेरी वेल। रेवेन्यू रास्ता दोनों में है। अगेन मैंने आपको जो पॉइंट बताया, कि बहुत सारे लोग बात करते हैं अबाउट दीनदयाल एंड ऑल, की रेवेन्यू रास्ता है, बेकार है, ये लैंड है यार, लैंड होता है, वो सस्ते में मिल गया तो उसको दीनदयाल बोल दिया। रेवेन्यू रास्ता इन दोनों में है, रेवेन्यू रास्ता हर मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक चीज़ें बोली जाती हैं टू मिसगाइड यू एंड ऑल दैट, तो बी अवेयर, ठीक है। अब हम ओपन स्पेस पर कैपिटा पे आ जाते हैं। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा आशियाना का और दोनों MR का न्यू लॉन्चेस का, उनको ओपन स्पेस पर कैपिटा देख लेना, आप ये देख लेना। यही पॉइंट आपको प्रूफ कर देगा कि वाई आई एम नॉट सेलिंग यू न्यू लॉन्चेस, वाई आई एम टेलिंग यू सेकेंडरी रियल मार्केट हैज़ द रियल वैल्यू राइट नाउ, ठीक है। आपका ओपन स्पेस पर पर्सन निकल के आया 165 to 170 स्क्वायर फीट गोदरेज में। शोभा में निकल के आया 178 to 180। दिस इज सच अ गुड मेजर हाई राइज में आपका अगर ये निकल के आ रहा है। और आपका विदाउट EWS इज 180 स्क्वायर फीट, 193 से 195 स्क्वायर फीट। शोभा इज ऑलमोस्ट टचिंग 200 स्क्वायर फीट विदाउट EWS और 180 गोदरेज का। तो दीज आर टू वेरी डेंसिटी से भी बेटर मेजर है ये ओपन स्पेस पर कैपिटा। आपको ब्रीदेबल स्पेस कितना मिलेगा, एंड 150 से जैसे ही ऊपर जाता है, यू आर लिविंग अ लग्जरी लाइफ।
सो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, बिकॉज ऑफ ओपन स्पेस पर पर्सन, आपका टोटल ओपन स्पेस इतना है, दैट्स वाई वी फाउंड दिस मेजर। ठीक है, क्लब हाउस पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बोला गया रिगार्डिंग द क्लब हाउस कि गोदरेज का इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउसेज इन दिल्ली एनसीआर, या यू कैन से दैट कि एक हद तक है। उसका क्लब हाउस का साइज़ 65,000 स्क्वायर फीट, कोई 70,000 स्क्वायर फीट, कोई 75 नहीं। मैं आपको बता देता हूँ जो उसका स्पैन है क्लब हाउस का इस 20,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। बट सिंस वो G+2 है तो उसका जो बिल्टअप निकल के आता है क्लब हाउस का, वो निकल के आता है 55,000 60,000 स्क्वायर फीट। तो आपने देखा ब्रोशर पे उन्होंने 65-66,000 दिखा रखा था, आपका हार्डली 55,000 है। थोड़ा सा आसपास का एरिया लगाओगे तो मे बी 60 बैठ जाए। ठीक है, शोभा में 2 क्लब हाउस हैं ओवल शेप के, यू गाइस नो, वेरी प्रीमियम क्लब हाउस। उसका एक जो फर्स्ट क्लब हाउस बना हुआ है दैट इज़ 16,000 स्क्वायर फीट। अब आप बोलोगे यार 16,000 तो मुझे वो लगता ही नहीं है जब मैं उसके अंदर जाता हूँ। या बिकॉज वो उसका जो दिस इज स्पैन जिसमें वो बना हुआ है, उसका बिल्टअप इज G+2, G+2 इज़ अराउंड 32 से 33,000 स्क्वायर फीट जो आपका है उसका एरिया। 33,000 प्लस 17,000 जो आपका सेकंड रेडी हो रहा है दैट इज़ 35,000 जिसका है, तो टोटल आता है 65,000 टू 70,000। तो आप अगर मार्केट में पता करोगे या किसी ब्रोकर को भी कनेक्ट करोगे, यू नो यू वुड सी कि आपको बता रखा है शोभा का क्लब हाउस इज़ 40,000, गोदरेज का इज़ 66,000। नो, दैट्स नॉट द केस। आपका बिल्टअप इज़ 55 टू 60,000, यहाँ पे बिल्टअप इज़ 65 टू 70,000, आपका स्पैन इज़ दिस। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है दोनों क्लब हाउस छोटे हैं या बेकार है। दीज आर वेरी गुड क्लब हाउसेज, आप एक बार जाके देखो। दीज आर वेरी प्रीमियम लेवल क्लब हाउसेज, यू नो। आपका ओलंपिक पूल है, इंडोर पूल है, थिएटर है, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे अर्बन पार्क है एमिनिटीज़ में, इंडोर पूल है, क्रिकेट स्टेडियम है, प्रॉपर एमिनिटीज़ है, स्पा रूम है, सारी चीज़ें हैं। और आपको एज यू गैस नो कमर्शियल तो नहीं है इन दोनों के, यू नो, सोसाइटी में। बट यहाँ पे कन्वीनियंस शॉपिंग के लिए आपको रिटेल शॉप्स दे रखी होती हैं। 8,500 स्क्वायर फीट, 8,200 स्क्वायर फीट फॉर डेली नेसेसिटी नीड्स। ओके, सो दीज आर समथिंग। अब हम अपार्टमेंट प्लानिंग पे आ जाते हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। गोदरेज का दिस प्लान इज़ 1825। ठीक है, 1108 इसका कार्पेट एरिया है, बैल्कनी एरिया इज़ 200, शोभा इज़ 1711, 4x1 1111 आपका कार्पेट एरिया है, इट्स अ गुड नंबर। बैल्कनी एरिया इज़ 135 आपका 1711 में। तो आप देख सकते हैं इवन दो सुपर बिल्टअप कम है बट कार्पेट एरिया शोभा में ज़्यादा है, 3 स्क्वायर फीट। आपका लिविंग डाइनिंग नेचुरल लाइट वो हम फ्लोर प्लान पे डिस्कस कर लेंगे, यू नो। लेट्स कम टू द प्राइस। सो प्राइस देखते हैं हम एक बार। द प्राइस इज़ आपको अभी 14,500 से 16,500 मिलेगा। 16,000 आपके आइकॉनिक टावर की प्राइस है, ऑफकोर्स वो थोड़े से महंगे थे। एंड जैसे मैंने आपको बताया आइकॉनिक टावर में फुल माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो जो आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे रहे हैं 500 से 700 या 800 रुपये, 1,000 रुपये स्क्वायर फीट आइकॉनिक टावर के लिए, दैट इज़ वर्थ इट। आप कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। प्राइस रेंज इसकी ये है। ठीक है, इस प्राइस में आपको मतलब आई वुड नॉट से यू कैन फाइंड अ बेटर प्राइस दैन दिस। एंड ये प्राइस आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आई विल टॉक अबाउट द रिटर्न्स एज वेल जो इसमें मैंने प्रिपेयर किया है। एंड आई विल टॉक अबाउट, यू नो, कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद द बायर्स, जो वो 2 साल का डिले था। तो शोभा में आपकी प्राइस रेंज पहले 18,500 से 19,000 थी, अब 19,500 से शायद आपको कुछ कम ना मिले। 21,500 इज़ द अपर रेंज। ठीक है, इसमें आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन यूनिट, PLC, टावर एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, डिले हिस्ट्री येस, एचरा केस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, डिले हिस्ट्री नहीं है इसमें। कंपनसेशन फॉर डिले डिस्प्यूटेड, बेटर रेपुटेशन, शोभा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ यू कैन से। कंपनसेशन फॉर डिले हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ द बायर्स। बायर सेंटीमेंट आपको ये प्राइस सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स्ड बायर सेंटीमेंट है। एंड मैं जेनवनली बोलूँगा बहुत गलत हुआ गोदरेज के जो बायर्स थे उनके साथ। एंड गोदरेज का अभी नहीं है, गोदरेज आप नोएडा में उठा के 3-4 उनके न्यू प्रोडक्ट्स देख लो, इंक्लूडिंग द हैबिटेट जो बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट बोला जाता है नोएडा में, उसको भी बहुत सारा डिले है 3 से 4 साल का। गोदरेज का हर एक प्रोडक्ट ऐसे है। बायर सेंटीमेंट पॉजिटिव है। सैम्पल फ्लैट रियलिटी गैप, ओके दिस इज समथिंग, यू नो, इन्होंने लिख दिया है। बट सैम्पल फ्लैट जो दिखाया गया था गोदरेज में और शोभा में, आपका शोभा में वैसे ही टाइप का मिला है। यहाँ पे सैम्पल फ्लैट जो दिखाया गया था एंड जो मिला है उसमें देयर इज़ अ ज़मीन आसमान का डिफरेंस। ठीक है, तो हु शुड बाय वॉट, कंसल्टेंट कंक्लूजन। अगर आप बजट फोकस्ड बायर हैं तो डेफिनेटली, यू नो, गोदरेज मेरिडियन के आइकॉनिक टावर्स आपको सही मिलेंगे 16,000 पे। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म एंड यूज़र हैं तो शोभा, अगर आप वो जो मैंने आपको प्राइस डिफरेंस बताया ये आपको पड़ेगा 3.45 का, दिस प्लान 1711, 3.4 का, ये आपको पड़ेगा 1108 का, अराउंड आई वुड से 2.85 2.9 CR तक का। ठीक है,
अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं और यू आर एन NRI या आप 3 BHK देख रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू शोभा, आप कनेक्ट कर सकते हैं. क्वालिटी फर्स्ट, शोभा इज़ अनमैच्ड, क्लियरली. हाइट एंड व्यू लवर, ऑफ कोर्स आइकॉनिक में आपको 30th फ्लोर पे अच्छा व्यू आएगा. एंड लिवेबिलिटी वाइज शोभा से वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़. So final consultant line, you can say hybrid construction isn't bad, but full Maivan leaves far less room for long-term workmanship issues. So बोलने का मतलब है, आप अगर ले रहे हैं, आप यू आर पेइंग 15,000, तो आप 500-600 रुपये पर स्क्वायर फीट या 800 रुपये पर स्क्वायर फीट ज़्यादा लेंगे जो फुल माइवन होगा. प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट. तो आपका प्राइस गैप नैरो हो जाता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी और प्लानिंग लास्ट में आपको समझ के आता है लॉन्ग टर्म में कि वॉट यू बॉट एक्चुअली. सो इट डिपेंड्स ऑन यू वॉट काइंड ऑफ थिंग्स यू प्रिफर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्केट एंड बायर फीडबैक पे इन गोदरेज मेरिडियन. ये मैं इसके लिए, अगर मेरे को बहुत सारे व्यूअर्स चाहिए होते या आई वांट कि नेगेटिविटी क्रिएट करके मैं अपनी चैनल की पब्लिसिटी करूँ या फ्रॉड डालूँ या स्कैम डालूँ या ये सारी ट्रैप डालूँ, तो मैं इस पर बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूँ. बट मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वे में बताऊँगा कि बायर्स कैसे गेम बायर्स के साथ क्या गलत हुआ एंड डेवलपर्स किस तरीके का गेम खेलते हैं, एंड वाई दिस होल सिस्टम इज़ एक्चुअली टू हेल्प आउट पीपल लाइक दिस डेवलपर्स जो ये करते हैं. तो हिस्ट्री ऑफ पोजेशन डिलेज आपको पता है, 2 से 2.5 साल का डिले हुआ. एशरा केस बहुत लोगों ने फाइल किया जिनको 10.8% इंटरेस्ट मिला, अराउंड 11% आप बोल सकते हो. 10 से 12 लाख रुपए उन लोगों को मिले या 15 लाख रुपए का इनके केस में. ठीक है, कंपनसेशन इश्यूज सब लोगों ने नहीं लिया बट काफ़ी लोगों ने लिया. कंसिस्टेंट फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप्स, आप लोगों को पता है गोदरेज की टीम व्हेन इट कम्स टू द डिपार्टमेंट वाइज हाउ दे हैंडल द पोस्ट. मैं आपको जैसे ही बोलता हूँ, कोई सा भी आप बिल्डर ले रहे हो, पोस्ट आपकी मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है, आपको हैंडल कैसे किया जा रहा है, आर दे गिविंग यू रिस्पेक्ट एज अ कस्टमर, हाउ आर दे हैंडलिंग यू, हाउ प्रोफेशनल दे आर, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है. सैम्पल फ्लैट मिसमैच था, अगेन ये मैंने और वीडियोस बना रखे हैं जिनमें सैम्पल फ्लैट का हुआ था, इसमें भी थोड़ा सा है. आपको पता है बिल्डर स्पेंड करते हैं अराउंड 1 CR तक भी स्पेंड करते हैं, 60 लाख भी. आप वो फ्लैट देख के आ जाते हो और वो सोचते हो आपको ऐसा फ्लैट मिलेगा, तो दैट इज़ द केस. ठीक है, अभी अपार्टमेंट प्लानिंग्स पे हम आते हैं, फ्लोर प्लान में. नाउ लेट्स डिस्कस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. हाउ मच गोदरेज एक्चुअली गेन फ्रॉम अ 2 year डिले. ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा. ये आपका डिले स्पेसिफिक मैथ्स है, कंजर्वेटिव, नॉट प्रॉफिट अकाउंटिंग. मैं ये नहीं बता रहा हूँ उन्होंने कितना कमाया, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस थी. मैं आपको बता रहा हूँ जो 2 साल डिले किया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. अगेन ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, यू कैन गो एंड रीड एंड चेक दैट आउट. ठीक है, this analysis does not calculate total project profit, it isolates only the financial advantage created by delay using conservative assumptions. So हम मानते हैं आपके जो पहले 2 टावर्स थे जिनमें बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, आइकॉनिक तो फिर भी सही टाइम पे है, 200 फ्लैट हैं अराउंड. अब मैं ये सारे आपको आइडिया देने के लिए ले रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट एज एक्यूरेट मेजर, बट मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़. एवरेज फ्लैट प्राइसेस 1.6 से 1.7, ठीक है, जो आपको उस टाइम पे मिली थी 9, 9,500, 10,000 में लोगों ने लिया है. आपका 2018-19 में तो है. अब वॉट पार्ट ऑफ दिस एक्चुअल वैल्यू इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय डिले. अ डिले डज नॉट क्रिएट एडवांटेज ऑन 100% ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू. सो जिन बायर्स ने लिया उनके लिए स्ट्रेस जोन क्या था, उन्होंने जब 50% पेमेंट दे दी उसके बाद 30 to 45% पेमेंट एक्स्ट्रा मांगी गई, जिसमें आपका डिले हुआ वो प्रोजेक्ट का पोजेशन आने में. ठीक है, 2 टावर्स का पोजेशन आने में. हमने यहाँ पे कंजर्वेटिव मिड पॉइंट लिया है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ. 35% हमने माना है कि जो टोटल 100% 1.6 1.7 की वैल्यू है उसका 35% पहले मांग लिया गया, जो जिस हिसाब से प्रोजेक्ट डिले हुआ. ठीक है, तो हम देखते हैं 35% ऑफ ये 320 करोड़ का कितना हुआ, 112 करोड़. 112 करोड़ इज़ द एक्सेस वैल्यू जिसमें डिले आया है बायर को. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो जो 112 करोड़ इज़ बायर फंडेड कैपिटल दैट स्टेड लॉन्गर देन इट शुड हैव है. सो इसका क्या मतलब है, जो लोगों ने पैसा दे दिया बायर्स ने, जिनको पोजेशन डिले हुआ, उनसे पैसा तो ले लिया, अब वो पैसे का क्या हुआ, तो वो जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज़ 112 करोड़. आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट. ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ, आपको कोई 112 करोड़ रुपए दे रहा है या आपको 112 करोड़ की ज़रूरत है, तो जो आपको 112 करोड़ की ज़रूरत है वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैठेगा, आप कहीं से भी लोगे, या इफ़ यू आर अ डेवलपर 10 से 12%. ओके, 10 to 12% इज़ द कॉस्ट. आपने 2 साल में अगर उसका आपने कॉस्ट लगाया 20 to 24% आया, मैंने मिड पॉइंट लिया 22%. आपका इस पैसे से जो आपका डिले हुआ है पोजेशन, 112 करोड़ का 22% आपका 24 से 25 करोड़ निकल के आता है. समझे आप, 112 करोड़ जो किसी ने पहले ले लिया डेवलपर ने,
वो पोजेशन डिले हुआ, उसका जो कॉस्ट अगर वो किसी बैंक से कहीं से फंडिंग उठानी होती तो 24 से 25 करोड़ उस पर इंटरेस्ट देना होता। सो दिस इज इंटरेस्ट कॉस्ट अवॉइडेड, जो गेन हुआ 24 से 25 करोड़ गोदरेज को, ठीक है। कॉस्ट एस्केलेशन एंड मार्जिन प्रोटेक्शन, ये क्या है आपका, हमने एक्सेस पोर्शन पे ही ली है। ड्यूरिंग अ 2 ईयर डिले लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई, ओवरहेड्स इंक्रीज हुए, बट बायर के प्राइसेस ऑलरेडी लॉक थे, बिल्डर को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और लिक्विडिटी मिल गई, तो इसमें कितना बेनिफिट हुआ, 8 से 10 करोड़ का। सो जो चीज़ें उनकी उन्होंने लगानी थी टावर में, जो चीज़ें थी, जो कॉस्ट आती है मटेरियल्स की कंस्ट्रक्शन में, उसमें आपका बेनिफिट हुआ है कंजर्वेटिव वे में 8 to 10 करोड़, कि उन्होंने पहले ही लॉक इन कर ली वो चीज़, ठीक है। आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग दिस पार्ट, कॉस्ट एस्केलेशन एंड मार्जिन प्रोटेक्शन। सो 8 से 10 करोड़ का फायदा यहाँ हुआ, जो कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट सारी चीज़ें बची। आपका 24 to 25 करोड़ इंटरेस्ट का जो है, इंटरेस्ट कॉस्ट अवॉइड की गई है उस कैपिटल पे। तीसरी चीज़ आपका रीडिप्लॉयमेंट। अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, आई ऑल्सो नो गोदरेज ने कहाँ लैंड एक्वायर किया उस टाइम के बाद, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कोविड के बाद कहाँ लैंड एक्वायर किया, क्या क्या निकाला गया, कहाँ प्लॉट्स निकाले गए। आई ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल, बट मैं आपको यही बता रहा हूँ 112 करोड़ अब किसी डेवलपर पे आ गए, या 2 साल का डिले हो गया टावर में, तो वो 112 करोड़ अपने बैंक पे तो नहीं रखेगा ना, आपको पता है बैंक में रख दिया तो वेस्ट है, तो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। अब 112 करोड़ पे आप बोलते हो कि 7 से 8% का भी रिटर्न लेते हैं, मैंने बहुत कंजर्वेटिव लिया है, 112 करोड़ पे 15 से 16 करोड़ आपका रीडिप्लॉयमेंट आता है। और ये नंबर मैंने इतना कम लिया है 15 to 16 करोड़, मेरे को पता है 112 करोड़ पे आपका टीयर 2 सिटी में किस वे में कहाँ लैंड आ जाता है, और वो लैंड का प्राइस अगर आप लोगों को पता है थोड़ा सा भी, इफ़ यू आर चेकिंग इट आउट, यू नो कि वो लैंड का प्राइस कहाँ जा चुका है इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, तो वो जो 112 करोड़ रीडिप्लॉयमेंट में किए गए हैं, वेयर दैट हैज़ बिन पुट अप एंड कितना प्रॉफिट हुआ होगा, मैंने 15-16 करोड़ मांगा है। और कंपनसेशन कितनी दी गई है, जो लिटिगेशन हुआ, और बहुत कम लोगों ने लिटिगेशन किया, सबने नहीं किया, ठीक है, उसमें हम मानते हैं 50 बायर्स सक्सीड हो गए, तो एवरेज कंपनसेशन 8 to 10 लाख है। 5 करोड़ आप मान लो कि कंपनसेशन दिया है कि डिले हो गया। अब आप इसमें देख लो नेट बिल्डर एडवांटेज, अगेन ये ब्लॉग है, आप जाके देख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट जो उस कैपिटल 112 करोड़ की थी 24 से 25, रीडिप्लॉयमेंट 15 से 16 करोड़, मार्जिन जो प्रोटेक्ट हुआ 8 to 10 करोड़, टोटल एक्सेस एडवांटेज 47 to 50 करोड़ रुपए कमाए हैं वो डिले से गोदरेज ने, लेस कंपनसेशन पेड 4 to 5 करोड़, नेट डिले आपका कितना एडवांटेज निकल गया है 40 to 45 करोड़। ये मैं अभी आपको एक आइडिया एज इन नंबर्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, बट ये बायर्स को कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा कि जब डिले होता है एक डेवलपर किस वे में क्या चीज़ें कर सकता है। मैंने आपको तीनों केसेस बताए हैं और कितना प्रॉफिट आ सकता है। ये भी अभी अगर एक एग्जांपल है, आप इसको स्पेसिफिकली मत लीजिएगा। इफ़ यू वांट स्पेसिफिक नंबर्स एंड ऑल दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। 112-120 करोड़ पे जो 2 साल का डिले हुआ, इतना उनको प्रॉफिट हो सकता है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फ्लो प्लान कंपैरिजन पे, ठीक है। दिस इज़ अ फ्लो प्लान, जैसे मैंने आपको बताया इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, दिस 3 BHK 1625, इट्स नॉट अ फुल माई वन, इट्स अ हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन, स्टिल इट्स अ 2.5 करोड़ में बहुत अच्छी डील है ये, इन अ न्यू कंस्ट्रक्शन जो आपको अभी मिल रही है। हाँ, कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, बट स्टिल 2.5 में लेट्स नॉट गो इनटू द नेगेटिव चीज़। काफ़ी सारे लोगों को उनका घर मिल गया है, 2 साल का डिले, मैंने आपको बता दिए नंबर, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड फ्लो प्लान, और आपको 2.5 से 2.6 में बहुत अच्छी डील है ये, ठीक है। अब फ्लो प्लान पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। सो वी हैव दिस, वी विल कंपेयर दिस फ्लो प्लान्स। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। एंड इन दिस सेकेंड पार्ट यू कैन सी, मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस भी दे रखा है फ्लो प्लान्स का। टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। आपका हमने एज यू गैस नो, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। 1825 में 1108 आपका कारपेट है, बैल्कनी है, इसका इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। लेट्स कम टू द कंपैरिजन टेबल। सुपर बिल्टअप गोदरेज में आपका 1825 है, ठीक है। आपका शोभा में 1711 है। कारपेट एरिया हमने बता दिया, बैल्कनी एरिया ये रहा 202 है ये, ठीक है। एंड 1441 आपका बिल्टअप है, यहाँ पे 1379 बिल्टअप है। आप देख सकते हैं लोडिंग, और आप यही गो एंड चेक आउट द वीडियो जो मैंने MR और आशियाना पे बनाया है, उनमें लोडिंग कितनी आ रही थी, क्या प्राइस था, और इनमें क्या प्राइस है, क्या आपको कारपेट एरिया मिल रहा है, और क्या लोडिंग है। सो अब अगर हम मानते हैं कि 12% वॉल्स है आपका कारपेट प्लस बैल्कनी में, तो आपका 1441 निकल के आता है गोदरेज में। अगर हम मानते हैं 15% है तो 1474। लोडिंग कितनी निकल के आ रही है आपकी सुपर बिल्टअप के हिसाब से 21%। अगर 12% है, 15% वॉल्स जो आजकल सारी न्यू माइवन कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में माना जाता है स्टैंडर्ड 15%, तो 19.2%। आई होप यू गेट दैट पार्ट। यहाँ पे शोभा वन ऑफ द बेस्ट लोडिंग एवर है, 1711 का प्लान है,
आपका 1111 स्क्वायर फीट कारपेट है, 1379 इसका बिल्टअप आता है, 1413 इसका 15% वॉल के साथ बिल्टअप आता है, लोडिंग 19.4%, यहाँ पे लोडिंग है आपकी 17.4%, ठीक है। प्लानिंग एफिशिएंसी मीडियम है, हाई है। ये जैसे मैं आपको पॉइंट बता रहा था आशियाना और एमआर के उसमें, इवन आफ्टर अज्यूमिंग हायर वॉल थिकनेस, शोभा स्टिल डिलीवर्स लोअर लोडिंग एंड बेटर यूजेबल स्पेस. Godrej's larger balcony and higher common loading inflate the super built-up without improving livability. थोड़ा सा लोडिंग ज़्यादा है, बट इफ़ यू कंपेयर टू हाई राइजेस न्यू लॉन्चेस, दीज आर अमेजिंग नंबर्स, ठीक है। अब आपके लिए एक जो आशियाना और एमआर वाला वीडियो है, व्हेन नंबर्स रिप्लेस ब्रोशर्स, सेकेंडरी रियल एस्टेट स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट मोर सेंस, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, ठीक है। इफ़ यू वॉच माई लास्ट वीडियो ने आशियाना एमआर, यू ऑलरेडी सॉ दिस पैटर्न केयरफुली. आपका कार्पेट एरिया, प्रोजेक्ट डेंसिटी, ओपन स्पेस पर कैपिटा, आपने देख लिया ओपन स्पेस पर कैपिटा इन दोनों का बेटर है. डेंसिटी किसकी बेटर है, कार्पेट एरिया आपको कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, लोडिंग कितनी मिल रही है. This video itself is the proof. When you compare numbers honestly without brochure numbers, real metrics like carpet efficiency, wall thickness and all those things, you start seeing where the real value is. And thank you to guys for voting clearly for this video, Shobha and Godrej, because मेरा वो जो last video था जो मैंने बोला, it has been proved in a way. That's why in today's market the real value is increasingly shifting towards the secondary real estate markets, projects where construction quality, planning efficiency and livability are already visible, not promised. ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम फ्लोर प्लान कंपैरिजन पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइनिंग एंड लिविंग एरिया. आप लोगों को पता है, दिस इज़ एज आई कीप ऑन सेइंग, दिस इज़ द हार्ट ऑफ योर हाउस एंड इसका लिविंग ड्राइंग इज़ वेरी गुड. आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप में है, उसके अलावा देयर इज़ अ डाइनिंग लॉबी एज वेल. दिस सो देख सकते हैं 11 feet 6 inches into 19 feet 3 inches. दिस इज़ समथिंग अ वेरी गुड साइज़. एंड अगर आप मुझसे पूछोगे ना, इसमें एक चीज़ है विद द टावर प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, आई रियलाइज जब आप अंदर से जाके फ्लैट देखेंगे ना, तो आपको ये वाली बैल्कनी थोड़ी सी कंजस्टेड लगेगी. ठीक है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ 9 feet 6 inches है. तो आप बोल सकते हैं इसमें जो ग्लास स्टोर है, दिस इज़ अराउंड 9 feet का. ठीक है, यहाँ पे एंड ये आपका यहाँ पे आप कंसोल भी रख सकते हैं, टेबल, और वॉट एवर यू वांट टू पुट इन एंड यूज़ दिस स्पेस. आप ये छोटा सा कुछ लोगों ने प्लान किया है यहाँ पे, एंड इस एरिया को मिला के बार एरिया, बिकॉज यू कैन एक्चुअली पुट लाइक अ 5-seater L शेप सोफ़ा हेयर एंड यू कैन पुट 2 chairs हेयर, ताकि आपकी लाइट भी आती रहे. तो 7-seater अरेंजमेंट आराम से आ सकता है इस ड्राइंग एंड लिविंग में. इतना अच्छा ये है आपका. ऑफ कोर्स 3 रूम टुगेदर है, बट 3 रूम जिनमें टुगेदर हैं उनमें भी दे डोंट प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ ड्राइंग एंड लिविंग. सो दिस इज़ वेरी गुड. इसका साइज़ आप देखोगे तो द साइज इज़ अराउंड योर 220 square feet. ठीक है, आप देख सकते हैं 11 feet 6 inches into 19 feet 3 inches. तो अराउंड 220 square feet का आपका साइज़ है इसका. एंड दैट्स अ वेरी गुड एरिया जो आपको सिर्फ ड्राइंग के लिए मिल रहा है. जो आपका डाइनिंग प्लेसमेंट है, लॉबी, अगेन दिस इज़ 11 feet 6 inches into 7 feet 9 inches. सो आप बोल सकते हो इसका भी साइज़ अराउंड आपका 11/8 का है. एंड दैट टू इज़ वेरी गुड. 11/8 आपका हो गया अराउंड 88 to 87 square feet का आपका साइज़ है ये इसका. तो हाँ, इन्होंने ये प्लेसमेंट बिल्कुल प्रॉपरली दिखा रखा है. ठीक है, आप इसको L-seater सोफ़ा रख सकते हैं यहाँ पे. सिंस ये देखिए इसकी टॉयलेट सीट इज़ क्लोज टू दिस, सो आई बिलीव ये टॉयलेट सीट यहाँ पे दिखा सकते थे. इट कुड हैव बीन मच बेटर. यहाँ पे लगा सकते थे, और दिस साइड इटसेल्फ. एंड आपका शावर एरिया इधर दे देते, बट ठीक है, आप एक ही चेयर आपकी इस साइड जा रही है, तो यू कैन जस्ट प्लेस द टेबल थोड़ा सा आगे. सो ठीक है, 6-seater डाइनिंग टेबल आ सकती है प्रॉपरली. अ प्रॉपर बिग साइज 6-seater टेबल, 7-seater अरेंजमेंट, आपका टीवी कंसोल, टीवी कैबिनेट के सामने. ठीक है, आपकी बैल्कनी इज़ गुड साइज़ में. आप देख सकते हैं 6 feet वाइड है, 9 feet 6 inches है. बट जो इसमें लाइट है ना, और जब आप एक बार फ्लैट में जाके देखेंगे, आप जब जैसे बैल्कनी से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको वो खुला नहीं लगेगा, थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा बिकॉज ऑफ द टावर प्लेसमेंट. बट वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड विच टावर एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो हॉल इसका मैं बोलूँगा दिस हॉल इज़ मीडियम. आप ये बहुत बेटर हो सकता था, बट स्टिल ठीक है. इसका जो पहले वाला प्लान बताया, दैट इज़ अमेजिंग. सो ठीक है, इनका आपका टोटल साइज़ मिला के आया अराउंड 300 to 310 square feet आपका डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया दिस फुल.
सो हम शोभा का चेक कर लेते हैं। शोभा का आप देख सकते हैं 18 फीट 4 इंचेस इंटू 11 फीट 6 इंचेस। सो अगेन अ वेरी गुड, आप देख सकते हैं दोनों में सेम ही है, बट यहाँ पे एक फ़र्क है इस हॉल में। दिस इज 11 फीट 6 इंचेस, ये अगेन 9 फीट का ग्लास वॉल है, यहाँ पे भी आपका 9 फीट का ग्लास वॉल था। बट इफ़ यू सी द देर इज़ अ फॉयर एरिया इज़ वेल, यहाँ पे यहाँ पे भी फॉयर एरिया है, बट दिस इज़ अ लाइक अ बिगर फॉयर एरिया, आपका अराउंड 5 फीट 4 इंच, मतलब आपका 22 स्क्वायर फीट का दिस फॉयर एरिया है। यहाँ पे भी आपका अराउंड 15 स्क्वायर फीट का फॉयर एरिया है, एंड यू कैन यूज़ दिस प्रॉपरली। बट अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जो यहाँ का डाइनिंग और लॉबी एरिया है दिस जो यहाँ पे है, ये यहाँ का बेटर है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग। एंड सेकेंड चीज़, नोट दिस पॉइंट, शोभा फ्लोर प्लान वाइज भी बहुत सारी चीज़ें केयरफुली एग्जामिन करता है। इसकी टॉयलेट सीट इस साइड है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या था, आपकी टॉयलेट सीट इस साइड पे है, सॉरी दिस टॉयलेट सीट इज़ वेरी क्लोज टू योर डाइनिंग टेबल। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ दिस स्मॉल डिटेल्स मैटर। जब आप रहना चालू करोगे यू वुड अंडरस्टैंड यार कि हाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप अभी तो आप ले सकते हैं, बट शोभा ने प्लान किया है दूसरे वॉल पर है, तो इधर आपका सेम वॉल पर है जहाँ पे आपकी चेयर है, स्टिल इट्स मैनेजेबल आपका यहाँ पे, लेकिन दिस इज़ प्रॉपरली प्लान। 18 फीट 4 इंचेस इंटू 11, मतलब 18 बाई 12 का हॉल है ये आपका। आप इसका साइज़ बोल सकते हैं नियर अराउंड 215 स्क्वायर फीट है, ठीक है। यहाँ पे आपका 220 स्क्वायर फीट था, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपका 5 to 6 स्क्वायर फीट का फ़र्क है इस रेक्टेंगल एरिया में, और फॉयर और ये मिला के दोनों का सेम ही है। और ग्लास वॉल भी 9 फीट है। आप बैल्कनी पे हम आते हैं, बट दिस बैल्कनी इज़ 5 फीट वाइड, यहाँ पे 6 फीट वाइड है। बट द थिंग इज़, आप अगर देखेंगे यहाँ से जो आपको बैल्कनी से व्यू आएगा शोभा में, नॉट ऑल द टावर्स बट मोस्ट ऑफ द टावर्स में कंजेशन नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंजेशन लगेगा व्हेन यू गो आउट इन द बैल्कनी। वो आपको एक बार रहने के बाद समझ आएगा, एंड व्हेन यू हैव एक्चुअली लिव्ड इन हाई राइजेस तो थोड़ा सा फ़र्क है टावर प्लेसमेंट की वाइज में, ठीक है। आपका लिविंग डाइनिंग एरिया इज़ 11 फीट इंटू 11 फीट 2 इंचेस, दैट इज़ अराउंड 121 स्क्वायर फीट, ठीक है। 121 प्लस 215 इज़ 325 स्क्वायर फीट। फॉयर मिला के 340 हो गया, तो आप बोल सकते हो ये टोटल एरिया लॉबी फॉयर एंड लिविंग इज़ 340 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपका था 320 स्क्वायर फीट, तो 20 स्क्वायर फीट बड़ा है शोभा का थोड़ा सा ये हॉल, ठीक है। अब हम किचन पे आ जाते हैं। 9 इंटू 11 फीट 8 इंचज़ है। दिस इज़ अराउंड आप बोल सकते हो कि आपका 105 स्क्वायर फीट से 108 स्क्वायर फीट का किचन है दिस, एंड दिस इज़ अ प्रॉपर किचन, इट्स अ प्रॉपर एल शेप किचन, जिसमें आपको यूटिलिटी बैल्कनी भी दी गई है। एंड यूटिलिटी बैल्कनी में भी दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस जो दिखा रखा है, या आप अपना कुछ टावर्स में आप बना भी सकते हैं, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। सो 105 स्क्वायर फीट का किचन विथ अ यू कैन से अराउंड 40 स्क्वायर फीट बैल्कनी, 37 स्क्वायर फीट यूटिलिटी बैल्कनी, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 142 स्क्वायर फीट किचन प्लस यूटिलिटी मिला के। यहाँ पे आपका किचन एंड यूटिलिटी इज़ 9 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट 6 इंचेस, तो आपका 10 बाय 7 का हो गया। दिस इज़ अराउंड 70 स्क्वायर फीट का किचन आपका, ठीक है, विद अ यूटिलिटी बैल्कनी ऑफ 6 बाय 7 5 बाय 7। तो यूटिलिटी बैल्कनी का साइज़ दोनों का सेम है एग्जैक्टली, बट द किचन जो शोभा ने दिया है 1711 में, इट्स अ वेरी गुड किचन। आपको ये 2200 और 2400 के साइज़ में ऐसा किचन मिलता है। सो फॉर अ होम मेकर दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग, शी वुड लव इट। इफ़ योर वाइफ इज़ हैप्पी यू आर हैप्पी मैन। सो किचन इसमें दिस इज़ समथिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको 105 स्क्वायर फीट का यू आर गेटिंग अ किचन 108 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे किचन छोटा है, दिस इज़ अराउंड आपका 10 बाय 70, बट स्टिल मैनेजेबल है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर एंड एल शेप, देन द वॉशिंग एरिया इज़ डिफरेंट, और आप बाहर भी बना सकते हो। तो गोदरेज का भी किचन अच्छा है, बट शोभा का इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किचन, ठीक है। अब ये आपका हॉल ये कवर हो गया। बेडरूम्स में आते हैं तो गोदरेज के बेडरूम्स आर बिगर, बट अगेन जैसे मैंने आपको, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई हैव क्लियरली स्टेटेड कि आपका जो नॉर्मल टावर्स हैं, प्रीमियम टावर्स हैं, उनमें अंदर रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन है। सो वाई आई मेंशन दैट पॉइंट, आप ये देख लीजिए रूम 11 फीट 12 इंचज़ है, ठीक है। आपका 11 फीट 12 इंचज़ है, यहाँ पे है 10 फीट 6 इंचज़ इंटू 12 फीट 1 इंचज़। तो ये जो रूम है, इवन दो इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइज़ इज़ अराउंड यू कैन से 130 स्क्वायर फीट, ठीक है, इसका साइज़। बट देन दिस 128-130 स्क्वायर फीट का रूम ना, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गोइंग टू बी बिगर दैन दिस रूम। इसका साइज़ इज़ 11 बाई 12, दिस इज़ 130
132 स्क्वायर फीट आपका निकल के आया, मतलब 5-6 स्क्वायर फीट बड़ा है ये वाला रूम, बट आपको ये रूम बड़ा लगेगा व्हेन यू गो एंड पर्सनली चेक, बिकॉज दिस इज़ फुल माइवन कंस्ट्रक्शन, और वो फुल माइवन कंस्ट्रक्शन की फील ही अलग है रूम की. गो एंड चेकआउट शाहपुर जी, गो एंड चेकआउट शोभा, एंड गो एंड चेकआउट द अदर प्रोडक्ट जिनको माइवन बोला गया है बट अंदर रेड ब्रिक है, सो दैट्स अ बिग डिफरेंस. सो ये रूम दोनों की मतलब 6 स्क्वायर फीट बड़ा है, बट शोभा का रूम आपको बड़ा लगेगा. ठीक है. नाउ दिस 10 फीट 8 इंचेस इंटू 12 फीट 1, मतलब आपका 12x11 का रूम हो गया. 130 स्क्वायर फीट का रूम है ये आपका जो सेकंड रूम है शोभा में. आपका यहाँ पे जो सेकंड रूम है दिस इज 14 इंटू 10 फीट 6 इंचेस. आई थिंक 14 फीट 9 इंचेस इंटू 10 फीट 6 इंचेस. सो इट्स अ वेरी बिग रूम. आपका इस रूम का साइज हो गया अराउंड यू कैन से 155 स्क्वायर फीट टू 157 स्क्वायर फीट. ठीक है. यहाँ पे आपका 130 स्क्वायर फीट एंड 155 स्क्वायर फीट, तो 15 स्क्वायर फीट रूम बड़ा है यहाँ पे आपका बेडरूम 2. एंड फर्स्ट बेडरूम बड़ा था गोदरेज का 5 स्क्वायर फीट, बट आपको शोभा बड़ा फील देगा. लेकिन ये जो 25 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है इतना आपको नहीं आएगा माई वन में, बट ये आपको रूम फील दे सकता है अराउंड 140 स्क्वायर फीट की, इवन दो ये 130 स्क्वायर फीट है. ये आपको जो बेडरूम 2 फील देगा ये एग्जैक्टली रेड ब्रिक है, तो ये 150 की देगा. तो हाँ, ये रूम बड़ा है गोदरेज का. सेकंड बेडरूम इज़ बिगर देन द सेकंड बेडरूम ऑफ शोभा. थर्ड बेडरूम मैंने आपको बता दिया. मास्टर बेडरूम पे आ जाते हैं. 16 फीट 6 इंचेस इंटू 11 फीट 3 इंचेस. तो इन्होंने 2 फीट की यहाँ पे वार्डरोब दिखा रखी है, 2 इंटू 11 की, तो मतलब 22 स्क्वायर फीट का ये दिखा रखा है आपको वार्डरोब. एंड 22 स्क्वायर फीट के अलावा यहाँ पे इन्होंने ये इस एज से लेके वार्डरोब तक आपका 14 स्क्वायर फीट है. ठीक है. सो इस पूरे रूम का साइज़ आपका निकल के आया अराउंड 185 स्क्वायर फीट. तो 185 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम इन अ प्रॉपर माइवन कंस्ट्रक्शन जो शोभा का है, दिस विल गिव यू अ फील ऑफ अ 200 स्क्वायर फीट मास्टर बेडरूम. सो इट्स अ वेरी गुड साइज़. ठीक है. आपका यहाँ पे मास्टर बेडरूम है 11 इंटू 14. सो आप बोल सकते हो इसका साइज़ इज़ अराउंड 155 स्क्वायर फीट. ठीक है. प्लस 155 स्क्वायर फीट में आपको एक्स्ट्रा ड्रेसर एरिया है जिसका साइज इज़ अराउंड 30 स्क्वायर फीट. तो 155 प्लस 35 180 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम हो गया, जिसमें अलग से ड्रेसर एरिया है. शोभा में अलग से ड्रेसर एरिया नहीं है, बट सम वुमेन डू प्रेफर अ डिफरेंट सेपरेट ड्रेसर एरिया. बट ये आपको बहुत बड़ी वार्डरोब है, तो सम वुमेन प्रेफर दिस काइंड ऑफ अ रनिंग बिग वार्डरोब एज वेल. बट यू गैस हैव टू टेक अ चॉइस. एंड दोनों का साइज सेम है 185 जैसे मैंने आपको बताया. बट 185 में सिंस दिस इज़ अ प्रॉपर माइवन कंस्ट्रक्शन फुल, तो आपको ये बड़ा लगेगा. ओके. अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. आपके अगर हम टिपिकली नंबर्स वाइज देखेंगे तो 30 स्क्वायर फीट रूम छोटे हैं आपके शोभा में एज़ कम्पेयर टू गोदरेज के 30 स्क्वायर फीट बड़े हैं. बट 25 टू 30 स्क्वायर फीट आपका जो तीनों रूम में फ़र्क है वो माइवन में वो सेम ही फील आएगी. सो आपको जो मेन फ़र्क पड़ेगा बेडरूम 2 पे पड़ेगा, व्हेन यू सी द बेडरूम 2 कंपैरिजन. उसके अलावा एवरीथिंग इज़ गुड एंड हॉल इज़ मच बेटर एंड बिगर एंड मच बेटर प्लान वेंटिलेशन वाइज भी इन दिस एज़ कम्पेयर टू गोदरेज. तो अगर आप फ्लोर प्लान बोलोगे रिगार्डिंग विच फ्लोर प्लान इज़ बेटर, आई वुड से टू यू दैट दोनों काफ़ी अच्छे फ्लोर प्लान है. अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है टू लिव इन 3 रूम्स टुगेदर, दे आर ओके विद दैट. बट अगर आप वेंटिलेशन वाइज देखोगे, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बैल्कनी है जो मैंने बताई आपको. एक मास्टर बेडरूम में बैल्कनी है, बैल्कनीज पे आ जाते हैं, जिसका साइज इज़ अराउंड यू कैन से 40 स्क्वायर फीट. 40 स्क्वायर फीट की ये हो गई, 60 स्क्वायर फीट की ये हो गई, 35 स्क्वायर फीट की ये हो गई. तो 60 35 95 प्लस 40 135 स्क्वायर फीट की बैल्कनीज है. आपके बाकी 2 रूम में बैल्कनीज नहीं है, सिर्फ एक ही मास्टर बेडरूम में बैल्कनी है. सो गोदरेज में आपके हर एक रूम में बैल्कनी है एंड देयर इज़ अ बिग रनिंग बैल्कनी है. तो आप अगर मुझसे पूछोगे अगर सिर्फ कार्पेट एरिया वाइज बताऊँ तो फ्लोर प्लान इज़ शोभा का बेटर बिकॉज द वे इट इज़ प्लान हॉल एंड एवरीथिंग. बट अगर वेंटिलेशन वाइज बताऊँ कि वेंटिलेशन किस में बेटर है, आपका ऑफकोर्स हॉल में थोड़ा वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी, इसमें कंजेस्टेड लगेगा आपको व्हेन यू गो एंड एक्चुअली चेकआउट. बट अगर हॉल को आप थोड़ा सा कर सकते हैं तो आपके तीनों बेडरूम्स में बैल्कनी है. तो आई वुड से दिस इज़ फॉर मी इट्स अ ड्रॉ इन अ फ्लोर प्लान. दोनों बहुत अच्छे फ्लोर प्लान है. इन दोनों फ्लोर प्लान्स को अगर आपको 3 रूम से दिक्कत नहीं है, आई वुड से टू यू 7.5 to 8 आउट ऑफ 10 है ये दोनों फ्लोर प्लान्स. दीज आर वेरी गुड फ्लोर प्लान्स. आप दोनों देख सकते हैं. आपको मैंने बता दिया टेक्निकल एनालिसिस हाउ मच इज़ द आपको कितना वो डिफरेंस पड़ रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोडिंग दोनों में बहुत कम है. सो येस, आई वुड से बोथ आर वेरी गुड फ्लोर प्लान्स, बोथ आर अमेजिंग. बट अगर चॉइस मिलती है एंड इफ़ योर बजट सेज यू कैन एक्सपैंड योर बजट,
शोभा इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट बेट फॉर द फ्यूचर। तो फ्लो प्लान दोनों के अच्छे हैं। एंड गोदरेज का आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि गो एंड चेकआउट द 1625 वाला प्लान जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें कार्पेट एरिया आपका 100 कार्पेट कम है, बट दैट इज़ अ वेरी गुड फ्लो प्लान यार। आप प्लीज़ 2.5 2.6 में यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल फॉर कंसल्टेशन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि वो इन्वेंट्री एक्चुअल में कम है। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए। अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं वीडियो के। गोदरेज के रिटर्न्स मैंने निकाले हैं।